All right, so in the today's session, we will be solving numericals on 1D motion. So let's start with first question. Preeti reached the metro station and found that escalator was not working. She walked up stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. So we have already solved this question during regular classes, but I just want you to remember this approach. So there is this escalator. For example, the distance is d. So when Preeti walks up, मतलब जब escalator working नहीं है, तो मान लो कि she takes time t1 to cover this distance. You know velocity is distance upon time. तो आपको पहले तो velocity distance upon time मिल जाएगा. Velocity is let us say v1, क्योंकि obviously she is walking, so she will be walking with some speed. Okay, तो यहाँ से आपको v1 मिल गया d by t1. And when she is stationary on the escalator, मतलब now escalator is moving up. Preeti is not walking, but she is just standing on the escalator. To cover the same distance d, she takes time t2 because speed of escalator is v2. So v2 is v by t2. आपको पूछा है time taken by her to walk up on the moving escalator. मतलब अभी escalator भी चल रहा है and she is also walking. So v will be equal to v1 plus v2. So d by t1 plus d by t2. So you can take out the common 1 plus t1 by 1 plus t2, and they're asking you time. How do you define time? Distance upon velocity. Distance upon velocity is time. Okay. So this is d, इसको cross multiply करते हैं यहाँ पे t2 plus t1 upon t1 into t2, right? तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, इस ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. सो लेट मी मेक सम स्पेस फर्स्ट. सो ये जो ब्रैकेट है t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 ऐसा आएगा d by v, but d by v by definition is t. So this is the total time taken by Preeti to walk up a moving escalator. t1 into t2 upon t1 plus t2. So simple question था, extremely simple question था, and we have already done this question in earlier classes. Next question. Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, and their positions are represented by xp of t, मतलब distance is a function of time, at plus bt, and xq of t is ft minus t square. ये correction है, it should be bt square over here because question is not printed correctly. What time do the cars have same velocity? So starting from the same point, there's a car P which is moving along straight line. There's a car Q which is moving along straight line, same straight line. तो दोनों का starting position भी same है, okay, and direction भी same है. Only thing that is changing is distance with respect to time. So at plus bt square, and in second case it is xq of t ft minus t square. आपको ये पूछा है कि कौन से टाइम पे दोनों का स्पीड सेम होगा, मतलब गिवन में आपको बोला है कि स्पीड सेम होना चाहिए. तो स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ p and q should be equal, and you know velocity is derivative of distance या displacement. तो डेरिवेटिव्स लेना है दोनों साइड्स पे, इक्वेट करो. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ x of p is at plus bt square equal to d dt of x of q which is ft minus t square. तो पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ a आएगा,
क्योंकि AT का डेरिवेटिव सिर्फ A आता है, DT का DT का होता है, और BT स्क्वायर का 2BT आएगा, यहाँ पे F माइनस 2T आने वाला है। आपको T फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट ऑल द टर्म्स कंटेनिंग T आर ऑन द सेम साइड। तो 2BT माइनस का प्लस 2T हो गया इक्वल टू F माइनस A। तो T और 2 कॉमन, 1 प्लस B इक्वल टू F माइनस A। तो T इज इक्वल टू F माइनस A अपॉन 2 इंटू 1 प्लस B। ऐसा कुछ है क्या F माइनस A? Yes, option number D. So in such question, what you have to do is you have to equate velocities of both the vehicles. Velocities can be obtained by taking derivative of displacement. So बस वो derivative लेते जाओ and you are done. That's it. That's all you are supposed to do. A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is Option D. option D. But ऐसे questions को solve करने का trick क्या है? First of all, yes, there's something called as Galileo's ratio. Anyways, अगर आपको वो नहीं पता, let's assume नहीं पता, तो फिर हमको क्या करना होता है ऐसे केसेस में? S इक्वल टू UT प्लस 1/8 स्क्वायर, लेकिन U तो तीनों केस में जीरो नहीं है, लेकिन हम तीनों केस में जीरो बना देंगे। ओके, इक्वल टू UT प्लस 1/2 स्क्वायर अगर हम लोग ये यूज करते हैं तो इन एनी केस अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। तो इफ u इज 0 यू हैव 1/2 स्क्वायर। जब केस 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, केस 1 मतलब फॉर फर्स्ट 5 सेकंड्स, तो फॉर t इक्वल टू 5 पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर कितना बोला है h1, हाफ g इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 25/2g। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब सेकेंड केस के लिए सॉल्व करता हूं फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, सपोज ये ऑब्जेक्ट पहले 5 सेकेंड में यहाँ पे आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया। अब जब सेकेंड केस सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे बी पॉइंट पे स्पीड पता होना चाहिए, क्योंकि नाउ इनिशियल स्पीड इज नो मोर 0 नहीं है। तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है अगले 5 सेकेंड में h2 डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो ये था 5 सेकेंड, ये था 5 सेकेंड, तो व्हाई नॉट आई टेक टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? h1 प्लस h2। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी नहीं फाइंड करनी है। वी आर लिटिल लेजी टू डू दैट एंड वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट। तो आई विल से फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स, नॉट द 5 सेकेंड, नॉट फ्रॉम 6 to 10। क्वेश्चन ने बोला है बोलने दो, हम पहले 10 सेकेंड की बात कर लेंगे। तो h1 plus h2 will become s and u will still be 0, क्योंकि अब मैं सीधा पॉइंट ऑफ जहां से ड्रॉप किया है वहीं से मेजर कर रहे हैं हम लोग। सो यू कैन स्टिल अप्लाई दिस, h1 plus h2 is equal to 1/2 g, सिर्फ t का 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा h1 plus h2 as 100/250 g। I will not simplify, I will write down 100 g/2, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 जो है h1 मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा h2 as 100 g/2 minus h1। so 100 g/2 minus h1, h1 is 25 g/2, so h2 is equal to 75 g/2, which is 3 into 25 g/2, which is 3 times of h1। so h2 is 3 times of h1, मतलब h1 is h2/3, right? तो h2/3 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका आंसर खत्म। आप चाहो तो थर्ड केस सॉल्व करो, तो अगर करना ही है थर्ड केस तो बता देता हूँ मैं, थर्ड केस सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो थर्ड केस वापस आप बोलोगे केस नंबर 3, you will say total time is 15 seconds,
then you will say total distance is h1 plus h2 plus h3, and that is equal to half g into 15 square. So 15 square is 225, if I'm not wrong, 255, yes correct, 225 by 2g, और इसमें h1 plus h2 आपको पता है अभी फाइंड किया था 100g by 2 है ना, 100g by 2 h1 plus h2, तो h3 आपको मिल जाएगा 225 by 2g minus 100g by 2, so that is 125g by 2, that is 5 into 25g by 2, that is 5 times of h1, so you have h1 as h3 by 5, या फिर h3 is 5 times h1, whatever it is, so you will still get the same option. अब एक शॉर्टकट ट्रिक है, Gallagher's ratio या उसको कुछ बोलते हैं, okay, that you find yourself, you check it out what is that condition, because ये जो रेशो आता है ये आता है 1:3:5:7:9:11, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो 5 सेकंड then 5 सेकंड then 5 सेकंड then 5 सेकंड, so the ratio is 1:3:5:7 and so on so forth, right? ऐसा क्यों होगा? Obviously that's very obvious thing. if you have object, आप इसको रिलीज करोगे तो पहले तो स्पीड 0 था, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, सो दैट इज बेसिक रीजन बिहाइंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone assuming g equal to 10 meter per second square, velocity with which it hits the ground is, this is a joke. What is, do you remember the kinematics equation which involves v square? Yeah, so ऐसा है, आपको ये हाइट दिया है 20 मीटर का, 20 मीटर का हाइट है, यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप हुआ है, जब ग्राउंड पे आएगा तो कितना स्पीड होगा, तो इनिशियल स्पीड 0 था, ये यहाँ पे v फाइंड करना है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि u 0 है तो v स्क्वायर इज 2a, g की जगह a की जगह पे g, s की जगह पे h, तो अंडर रूट ऑफ 2 into g की वैल्यू 10, s की वैल्यू 20, दिस इज सिंपल, रूट ऑफ 400 इज 20, खत्म, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड. तो क्या करना चाहिए? सिंपल, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, बिकॉज क्रैश कोर्स में जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं, राइट फ्रॉम 2003 to 2020. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये बता देता हूँ कैसे आता है, बट आपको ये पता होना चाहिए. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इट इज सी, दैट इज करेक्ट, बट आई विल टेल यू अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर सच फॉर्मूलाज. क्वेश्चन में बोला है a particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half with speed v2. Average speed during complete journey is, total distance s मान लेते हैं, मानते हैं a से b से c, मतलब total distance is a to c, that is s. तो ये s by 2, ये s by 2, ये टाइम t1 में कंप्लीट किया, ये टाइम t2 में कंप्लीट किया, इसका स्पीड v1 था, यहाँ पे स्पीड v2 था, क्योंकि आपको क्लियर कट बोला है कि स्पीड is v1 in the first half and v2 in the second half. So what you're supposed to find is average speed. Do you remember average speed is total distance by total time? total distance को आंख बंद करके s लिख देना, s1 s by 2 plus s by 2 लिखने की जरूरत नहीं है, total distance by total time एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है. ओके, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2. व्हाट इज t1? दैट इज डिस्टेंस s1 बाय स्पीड, दिस इज s2 बाय स्पीड. ओके, दिस इज s बाय 2 v1 एंड s बाय 2 v2. तो टोटल टाइम आ गया आपके पास s बाय 2 कॉमन, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2. So t is equal to s by 2 v2 plus v1 upon v1 into v2. ये टोटल टाइम आ गया. तो ये एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस s था अपॉन टोटल टाइम आया s by 2, है ना,
v1 plus v2 by v1 into v2 कैंसल ये 2v1 v2 ऊपर जाएगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया। अब एक ट्रिक है, द ट्रिक इज दिस। जब आपको बोला है दो डिस्टेंस के दो इक्वल हाफ किए, डिस्टेंस के टाइम के नहीं, डिस्टेंस के दो इक्वल हाफ किए तो एवरेज स्पीड डायरेक्टली 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 डायरेक्टली। अगर टाइम के दो इक्वल हाफ किए तो एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाय 2। तो जब आप ये लिखते हो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाय 2, you divide time into two equal halves and then take average। तो डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस में स्पीड v1 है, हाफ डिस्टेंस में स्पीड v2 है, एवरेज इज 2v1 v2 by v1 plus v2। This is how you have to remember such formulas। Next question, it's very simple if you remember derivatives। So a particle moves a distance x in time t according to equation x equal to t plus 5 raised to minus 1। Acceleration of the particle is proportional to, पहले तो velocity निकाल लो, velocity is dx by dt। Take derivative of this। You should know formula of derivative of f of t with respect to t raised to n, of course, n into f of t raised to n minus 1 into derivative of f of t। ये फॉर्मूला है। n हमारे पास -1 है, f of t हमारे पास t plus 5 raised to, ये है f of t, दिस इज f of t, t plus 5 is f of t। ऊपर आपको क्या करना है, n minus 1, n था -1 -1 आ जाएगा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t plus 5, ये वैसे भी 1 आता है। सो इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स तो ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन t plus 5 का स्क्वायर, दैट्स इट। Okay, but I would recommend you not writing in this way, you write it like t plus 5 raised to minus 2 only। This is velocity। अब आप acceleration find करो, वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करो। Acceleration is dv by dt of v, v है minus t plus 5 raised to minus 2। I will beforehand take this negative outside और वापस से f of t raised to n का फॉर्मूला -2 t plus 5 raised to -2 minus 1, that's it, क्योंकि डेरिवेटिव of t plus 5 will again be 1, ऐसा आएगा। तो ये आ जाएगा 2 t plus 5 raised to -3। आपको पूछा है एक्सेलरेशन is proportional to what? तो velocity raised to 3/2, velocity raised to 3/2 distance square ऐसा पूछा है आपको, तो क्या करेंगे? तो what I will do is a very simple trick। ये acceleration is equal to 2, मैं ऐसा करता हूँ, मैं t plus 5, मैं माइनस को यहाँ पे रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 3 को यहाँ कर दिया, राइट, करेक्ट, गुड। हमें यहाँ पे वेलोसिटी एडजस्ट करना है, करके देखते हैं। इफ आई राइट डाउन 2 हियर, ये बन गया क्या वेलोसिटी, आ गया ना वेलोसिटी, -2 था, राइट, बट इन रियलिटी -2 है क्या वहाँ पे, नहीं, तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ पावर में एडजस्टमेंट। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी रेज टू, हो गया ऑप्शन नंबर, सिर्फ पावर्स को एडजस्ट नहीं है, दैट्स इट। ओके, तो व्हाट यू आर डूइंग इज टेकिंग डेरिवेटिव 2 टाइम्स, एडजस्टिंग पावर, खत्म, दैट। वैसे भी जोक था, क्यों जोक था? आफ्टर दिस स्टेप
इस स्टेप के बाद आपको पक्का समझ में आ गया था कि ऑप्शन बी और सी तो आएगा ही नहीं आ सकता ना। क्यों? क्योंकि इस 3 को मैं अगर ब्रैकेट के बाहर भी लिख देता, ऐसा लिख देता, तो ए दिस इज एक्स क्यूब है क्या? एक्स क्यूब नहीं, डिस्टेंस स्क्वायर और डिस्टेंस टू द पावर -2 ही है, मतलब हमको डेफिनेटली वेलोसिटी के टर्म्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second is। देखो अभी बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको बोला है डिस्टेंस इन द थर्ड सेकंड फाइंड करना है। थर्ड सेकंड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल 3 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि मैं ए से बी 1 सेकंड में गया, फिर बी से सी 2 सेकंड में पहुंचा, मतलब और 1 सेकंड, फिर सी से डी 1 सेकंड। तो बहुत सारे बुक्स में क्या बोलते हैं कि आपको थर्ड सेकंड में मतलब सीडी डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो बहुत सारे बुक्स में बोलेंगे एक काम करो, ये टोटल डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स, s3 बोल दो इसको, करेक्ट। इनिशियली तो रेस्ट पे था, हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू 4/3 दी है, t की वैल्यू 3 स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 2/3 इंटू 9 मतलब 18/3। फिर आपको बोलेंगे कि चलो टोटल 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लो। तो s2 मिल गया, s3 मिल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, s2 मिल गया, और यहाँ पे भी वही आएगा, u तो 0 है तो 1/2 4/3 2 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 जा 2 जा दिस इज 8/3। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड s डैश बोल देते हैं इज इक्वल टू s3 माइनस s2, 18/3 माइनस 8/3 दैट इज 10/3। ऐसा हमें नहीं करना है, आंसर करेक्ट है, और ऐसा नहीं करना है बिकॉज यू नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड इज u प्लस a/2 to n -1। बहुत लोग यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। Okay, so this is method 2 which is simple distance traveled in third second, s3 n की जगह पे 3 डालो, तो u तो 0 ही है, a की वैल्यू 4/3 है by 2, 2 into 3 minus 1, तो 1 जा 2 जा 2/3 into 5 that is 10/3, खत्म। So you don't have to do all these things, okay? ये आपको सारा का सारा रिपीट नहीं करना है, मतलब यू डोंट हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल 3 सेकंड्स, देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स, देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड, ये सब नहीं करना है, डायरेक्टली यूज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moves from x to y। So there's a car which is moving from x to y with a speed v of u। तो x to y जब गया तो with a speed of u, right? और रिटर्न आया with speed v d, y to x, average speed एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये, 2v1 v2 upon v1 plus v2। यहाँ पे भी x to y, y to x, their total distance, x to y half distance with speed vu and y to x half distance with speed vd। तो वही तो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, सिंपल ओरल क्वेश्चन। Position x of a particle with respect to time along x-axis is given by x equal to 9 t square minus t cube, where x is in meter, t is in second. What will be the position of this particle
when it achieves maximum speed along positive x direction. Here आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैंने बोला होता, यहाँ पे क्या पूछा है, what will be the position of this particle when it achieves maximum speed. गाड़ी चला रहे हैं, फुल कर दिया, सपोज आपकी जो भी गाड़ी है वो 100 किलोमीटर पर आवर तक ही जा सकता है, हो गया फुल. What do you mean by maximum speed? A becomes 0. You cannot accelerate your vehicle anymore. तो maximum speed मतलब acceleration 0. मतलब dv by dt 0. तो पहले dv by dt निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, तो पहले v पता होना चाहिए. तो v पहले फाइंड कर लो, dx by dt. तो मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड मतलब एक्सीलरेशन 0. तो दिस इज d dt of x 9t square minus t cube. तो ये आपका आ जाएगा 18t minus 3t square. फिर एक्सेलरेशन that is dv by dt, that is d dt of velocity which is 18t minus 3t square. तो ये आपको मिल जाएगा 18 minus 6t, और इसी को आपको 0 लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका 60 is equal to 18. तो आपको t मिल गया 3 सेकेंड, t 3 सेकेंड मिल गया. आपको पूछा था डिस्टेंस कितना, पोजीशन कितना, तो पुट t equal to 3 in equation of displacement. What you will do is you will put t equal to 3 in x equal to 9t square minus t cube. तो ये हो गया आपका x equal to 9 into 3 square minus 3 cube. So this is 3 square. Okay, 3 square is 9. 9 into 9 is 81 minus 27, 54 meter. Option number A. Next question. Two bodies, 1 kilogram, 3 kilogram, are dropped from heights 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground. Easy question है. Do you remember? वैसे by the way, हर जगह पे आप kinematics का equation लगाते रहते हो. S equal to ut plus 1/2 at square. S in this case is h. Right. You dropped मतलब 0. हाफ नीचे क्यों आया, g की वजह से आया, राइट. तो 2h by g equal to t square. तो t is root of 2h by g. अभी दो ऑब्जेक्ट के लिए g अलग होगा क्या, नहीं. तो t is proportional to root of h. तो आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन. तो t1 by t2 equal to root of h1 by h2, root of 16 by 25, 4 by 5. हो गया, खत्म. Option A. Done. Simple. Done. Next question. If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent. अभी समझ लो क्वेश्चन, तुक्का नहीं चलेगा यहाँ पे. You have to understand and then solve. You have a ball, let's say, and you are throwing this ball up, and let's say it goes maximum up to a height of h from ground. H. Maximum h. Total time to reach this point, ऊपर जाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, मान लो टाइम लग गया कैपिटल T. Okay, if a ball is thrown vertically up with initial speed u, distance covered during the last t seconds, आखिरी के t seconds of ascent. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले मान लो कि ठीक है, लास्ट t seconds मतलब ये, तो t2 इक्वल टू, तो पहले t1, what is total time? t1 plus t2 equal to capital T. तो t1 equal to capital T minus t2,
मतलब t माइनस टी, मतलब ये टाइम कितना है, टोटल टाइम माइनस द लास्ट फ्यू सेकेंड्स, सही होगा ना। टोटल टाइम कितना होगा, कैपिटल टी, आखिरी के 30 सेकेंड्स, तो नीचे का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल टी माइनस टी में होगा ना, राइट। डू यू नो s इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि द सिस्टम द बॉल इज गोइंग अगेंस्ट। मान लो ये जो डिस्टेंस है दिस इज h, या फिर ऊपर का h, जैसे भी आपको नोटेशन इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। अभी मैंने क्या नोटेशन यूज किया है आई डोंट रिमेम्बर, व्हाटएवर इट इज, सो जो भी किया होगा व्हाटएवर इट इज, इसको h मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं, जो भी है आपको h2 फाइंड करना है इन शॉर्ट, तो इसको मैं h1 बोल देता हूँ, करेक्ट। ये s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं पूरे केस के लिए, राइट, पूरे केस के लिए मतलब यहां से यहां तक के लिए अप्लाई करूंगा, और फिर यहां से यहां तक के लिए अप्लाई करूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या है, पूरे केस के लिए अप्लाई करोगे, सो फॉर कंप्लीट ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी बोलो या पाथ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल H इज इक्वल टू U कैपिटल T माइनस हाफ G कैपिटल T स्क्वायर, ओके। एंड देन फॉर H1 कैसे करोगे यार, H1 क्या आपको पता है, वापस वही है, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू कैपिटल H, तो H1 इज कैपिटल H माइनस H2, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाटएवर इज, राइट। तो कर लो, यहाँ पे भी अप्लाई कर लो, तो आप लिखोगे यहाँ पे H1 इक्वल टू U T माइनस T, है ना, T माइनस T माइनस हाफ G T माइनस T का स्क्वायर, करेक्ट। पूरा मोशन आखिरी के t सेकंड छोड़ के मोशन, पूरा डिस्टेंस आखिरी का t सेकंड का डिस्टेंस छोड़ के, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तब तो सब्ट्रैक्ट इजी है। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस h minus h1 by definition, what definition, nothing, सिंपल सा फॉर्मूला है, h2 क्या है, h minus h1 है, वही तो फाइंड करना था, तो यही तो फाइंड करना है आपको, यही फाइंड करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो ना, क्या हो गया फिर, ये ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ut माइनस t1 माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी माइनस टी का स्क्वायर, ओके। नाउ इसका एक शॉर्टकट भी है, पहले मैं पूरा मेथड बता देता हूँ फिर शॉर्टकट देता हूँ। दिस इज h2 ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ut माइनस माइनस प्लस ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2t कैपिटल T माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करते बैठे इसको आप, तो यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग, ये गया, अभी अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा सॉल्व, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कंप्लीट मेथड, ओके। तो ये सॉल्व करो इसको, 1/2 जी 2t इंटू कैपिटल T देन हाफ जी टी स्क्वायर, ये और ये कैंसर, ये एंड दिस वेंट अवे, ओके। तो ये क्या आ गया आपके पास, हाफ जी टी इंटू कैपिटल T माइनस सॉरी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, डन। अभी प्रॉब्लम है इसका, वेयर डिड दिस टर्म गो, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास, है क्या, नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, जब आप सॉल्व करने गए तो क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा, कहाँ से आया एक्स्ट्रा टर्म, थिंक अबाउट इट, कहाँ से आया एक्स्ट्रा टर्म, कहाँ से आया, कहाँ से आया,
जब ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाता है? वेरी गुड। v इज इक्वल टू u प्लस at, ऐसा लिखते हो ना? v0 u माइनस g कैपिटल T माइनस क्यू गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये t क्या आ जाएगा आपके पास? u बाय g। एक तो ये u बाय g आ गया। सो कैन वी डू समथिंग हियर? माइनस gt u बाय g। ओके, तो ये आपको मिल रहा है हाफ gt स्क्वायर माइनस ut। ऐसा भी तो कुछ नहीं है क्या? नहीं। तो क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा? सो व्हाट वी डिड वाज, यहाँ पे हमने ऊपर इसको और इसको कैंसिल किया, माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखा, लेकिन ये प्लस ut का टर्म हमने लिखा नहीं। अब अगर वो तुम लिखते तो यहाँ पे एक ut का टर्म आता और फिर ये जो यहाँ पे आपने कैपिटल T इक्वल टू u बाय जी लिखा है, तो इस कैपिटल T में u बाय जी लिखने के बाद और यहाँ पे एक ut का टर्म है, तो ये प्लस ut और ये माइनस ut हो जाएगा कैंसल। तो दिस विल बी इक्वल टू जस्ट हाफ gt स्क्वायर। सिर्फ एक टर्म, ये टर्म यहां से नीचे नहीं लाए थे, दैट्स इट। ओके, so this is where we went wrong. Now do we have this much of time? No. तो अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट फाइंड करना है, how to do it without doing all this mathematics. That is what last second of ascent is equal to first second of descent. पर उन्होंने ऐसा लास्ट सेकंड नहीं बोला ना, उन्होंने बोला है लास्ट t seconds. First t seconds is equal to last t seconds. तो ऊपर वेलोसिटी 0 तो नीचे आते वक्त से तो ये बचेगा ut से। Well, just a minute. I'll tell you what you are saying is, आपको पता है gravity is not biased. You see, ऐसा कभी सुना है क्या? ऑब्जेक्ट ऊपर जाते वक्त अलग एक्सीलरेशन हुआ और नीचे आते वक्त अलग एक्सीलरेशन हुआ? ऐसा कभी ना सुना है ना कभी सुनोगे। You have not heard and you will never hear कि ऊपर जाते वक्त g की वैल्यू अलग थी, नीचे आते वक्त g की वैल्यू अलग है ना? तो ऐसा तो होता नहीं। तो सिर्फ केस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u लिख दोगे 0 और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी लिख दोगे v। अब बोलोगे कि एसेंट के लिए जितना टाइम उतना ही डिसेंट के लिए टाइम। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सीखा था आपने, करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम t बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ डिस्टेंस h2 है, h है, जो भी नाम दो टाइम फर्क पड़ता है। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड। ऊपर जाते वक्त g की वैल्यू अलग, नीचे आते वक्त g की वैल्यू अलग। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो आखिरी t सेकेंड ऑफ एसेंट बोल दो या फिर फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डिसेंट बोल दो, आंसर विल बी सेम। डिड यू गेट माय पॉइंट? ऐसा है कि ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये पॉइंट मान लेते हैं B है, ये पॉइंट मान लेते हैं C। हमें क्या फाइंड करना है? B से C में कितना डिस्टेंस होगा, राइट? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी को छोड़ दो, कुछ और था क्या? नहीं। तो डी एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो B से C जाने के लिए अगर t सेकेंड लगते हैं, उल्टा सोचो, C to B आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो उल्टा सोचो, यू डोंट इवन थिंक कि आखिरी टी सेकेंड, नहीं बोलना ऊपर से नीचे आ रहा है। तो पहले टी सेकेंड में जितना डिस्टेंस लगेगा ऊपर से नीचे आने के लिए, उतना ही टाइम आखिरी टी सेकेंड लगेगा नीचे से ऊपर जाने के लिए। व्हाई? बिकॉज जी इज जी, इट डज नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मूड। ऐसा नहीं कि अभी 10 वैल्यू बाद में 20 वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट बायस्ड। क्लियर? तो नाउ दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। इफ यू वांट टू क्रैक एग्जाम, अब खुद सोचो कि इतना टाइम है कि हमारे पास करने के लिए नहीं, तो अगली बार से ओवरऑल ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। गुड। सो डायरेक्टली इट इज हाफ GT स्क्वायर, डायरेक्ट। So in short, if you want to write down trick, you say time of ascent is always equal to time of descent. But time of ascent in last t seconds is equal to time of descent in first t seconds. So this is how you solve this. Okay, so that is what you have to do. Simple. Next question. वापस वही है, motion of particle is given by equation s equal to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 8. Value of acceleration of the particle at 1 second equal to 1. डबल डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लूंगा तो 9t square plus 14t plus 14 मिलेगा। दूसरा डेरिवेटिव लूंगा तो 18t plus 14 मिलेगा। आपको a at t equal to 1 करना है। 18 into 1 plus 14 मतलब 32। खत्म। ऑप्शन नंबर बी। दो बार डेरिवेटिव लेना है। That's it. A car moving with a speed of 40 km/h can be stopped by applying brakes after at least 2 meters. आपने ब्रेक अप्लाई किया, 40 किलोमीटर का स्पीड था, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, 2 मीटर के बाद गाड़ी जाके रुका है। अभी वही गाड़ी है, सिर्फ स्पीड को 80 km/h का है। व्हाट इज मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? 2 मीटर है। मैं पहले आपको बताता हूँ लंबा वाला मेथड, विच वी डोंट वांट टू डू, लेकिन इन कंपैरिजन बताना चाहिए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, माइनस 2 लिखा क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, गाड़ी रुकने वाला है, मतलब b की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पहले तो u 40 km/h, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर आप यहाँ से d एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, फिर ये a की वैल्यू केस 2 में डालोगे। ऐसे करोगे ना। केस 1 में आपको u दिया है 40, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। s दिया है 2 मीटर, u और s की वैल्यू डाल के आप a फाइंड करोगे, फिर a की वैल्यू केस 2 में डालोगे। करेक्ट? व्हाई यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, करना नहीं ऐसा कुछ। व्हाई? बिकॉज आई टेल यू हियर, दोनों केस में फाइनल स्पीड 0 0, u स्क्वायर माइनस 2as, तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a स्टॉपिंग डिस्टेंस। गाड़ी सेम, राइट, गाड़ी सेम मतलब गाड़ी का मास सेम। एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? फोर्स अपॉन मास। ब्रेक लगा रहे हो, सेम गाड़ी है, सेम फोर्स से ब्रेक लगा रहे हो आप, फोर्स सेम, मास सेम, मतलब a यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन सेम, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, डायरेक्टली। तो s2 बाय s1 इक्वल टू u2 बाय u1। यहाँ तो आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि u2 u1 दोनों के दोनों किलोमीटर पर आवर में है। हो गया क्या? 1 जा 2 जा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 into s1 is 2, मतलब 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Question: a rubber ball is dropped
from a height of 5 meter on a plane. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of. तो पहला ऐसा है 5 मीटर, फिर वापस बाउंस करके 1.8 मीटर. H1 5 मीटर. Initial velocity in first case 0. Final velocity in first case under root of 2g h1. ये अभी आपको ओरली करते आने चाहिए. सेकेंड केस बाद में देखते हैं हम लोग. 2 into g की वैल्यू 10 ले लोगे तो ठीक रहेगा. लेट्स सी, ये 5 है, 5 into 10, 2 is 10, 10 into 10 100, the square root again 10. So velocity, final velocity in the first case is right. यही velocity second case के लिए initial होगा. तो u2 equal to v1 equal to 10 meter per second. Okay, right. दूसरे केस में फाइनल स्पीड फाइंड कर लेंगे. हाइट तो पता ही है, पता है ना, 1.8 मीटर. हाउ डू यू फाइंड आउट v2 बाय द वे? क्या पूछा है, क्या पूछा है? यही तो प्रॉब्लम है ना. दिस इज वेयर पहली बार फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमेशा 0 होगा. तो फिर किसके साथ कंपेयर करोगे? 0 को किसके साथ कंपेयर करोगे? राइट. तो ये जो मैंने लिखा, दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, पहले केस का आपने जो स्पीड निकाल लिया दैट इज ओके, वो ठीक. मैं इसको ऐसा भी बोल सकता था, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. हाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता है रेस्ट पे, द ऑब्जेक्ट ओनली हैज पोटेंशियल एनर्जी. जब वो ग्राउंड पे आएगा तो हाइट 0 हो जाएगा, ओनली एनर्जी काइनेटिक. आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो भी आपको v1 10 मिलेगा. सो करके देखो, mg h1 इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर. कैंसल कैंसल, आ गया क्या? v1 स्क्वायर इक्वल टू 2g h1. मैंने भी तो वही लिखा, अंडर रूट ऑफ 2g h1. करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट. प्रॉब्लम है सेकेंड केस का. अब सोचो कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी होगी, ऐसा मत बोलना यहाँ का इनिशियल केस मतलब पहले का फाइनल वेलोसिटी. हियर यू कैन नॉट डू दैट. ये नहीं कर सकते आप, राइट. यहाँ नहीं चलेगा ये. ओके, तो यहाँ पे आप बोलो हाफ v2 स्क्वायर. यहाँ पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg h2. तो इक्वेट करो फिर सेकंड केस में. बोलो काइनेटिक एनर्जी एट द फ्लोर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2. तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 2g h2. मतलब वापस से यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना था, सिर्फ विद हाइट h2 अंडर रूट ऑफ 2g h2. सिंपल सिंपल. 2 into 10 into 1.8, 18 into 2 36, 36 का रूट 6, 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, the ball loses its velocity on bouncing by a factor of v2 by v1. पूछने की कोशिश की है, प्रॉपर्ली क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाए वो. They are not able to frame question properly क्योंकि the ball loses its velocity on bouncing by a factor of. by a factor of, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा. आप ये भी सोच सकते हो कि v2 minus v1 by v1 पूछा है, right? So in short they are asking you ratio of v2 by v1. In short 6 by 10, 3 by 5, option number A. Okay, this is how you're supposed to solve. The question according to me is not properly framed. I could have asked what is velocity v2 in terms of v1. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा. So it's okay. I mean
वैसे भी बाकी 3 ऑप्शन में कुछ आने वाला है नहीं, so this is what you can do. Okay. Position x of a particle varies with time x. Axis will be 0, वापस वही है, एक्शन 0 मतलब dv by dt 0, तो पहले v निकाल लो, v is dx by dt, ये ओरली आना चाहिए 2at minus 3bt square, ये v है, a मतलब इसका दूसरा और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, that is 2a minus 6bt, तो 2a minus 6bt एक्सेलरेशन को 0 लिखो तो आपको मिल जाएगा 2a equal to 6bt, मतलब t is equal to 1 जा 3 जा a by 3b, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसे क्वेश्चंस तो अभी ओरली होने चाहिए। 16th, a body dropped from a height h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity of 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of second mass with which it strikes the ground is. दो बॉडीज है, सेम हाइट से, एक को ड्रॉप किया, एक को थ्रो किया, राइट, गुड, सेम हाइट से अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता सेकंड केस के लिए, तो v, क्योंकि हमको v फाइंड करना है, v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2as, मतलब v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u2 स्क्वायर प्लस 2gh, मुझे u2 पता है 4, ये है ना 4, g 9.8 या 10 जो भी लेना होगा, h नहीं पता, h आएगा पहले केस से, तो पहले केस में क्या था, v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2gh, h सेम है, राइट, तो यहाँ पे u1 0 है पहले केस में, तो v1 स्क्वायर इज 2gh, तो h इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन 2g, v1 3 देके रखा है, तो 9/2g। मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए सीधा ये u2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2gh, h को मैं 9/2g लिखूंगा, ये 2g और 2g कैंसिल, हमारा कैलकुलेशन सिंपल, 16 plus 9 25, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, यस। So if you want, you can say s equal to ut plus 1/2 at square, ये यूज क्यों नहीं कर सकते, टाइम नहीं पता, तो और क्या हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। अभी दोनों केस में हाइट तो सेम ही है, तो h1 इक्वल टू h2 लिखोगे, मतलब यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब g बेसिकली, तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाय 2a, ये भी g है, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, हमें क्या फाइंड करना था, v2, तो फिर v2 फाइंड करो, तो v2 पहले बाय द वे v1 वाज 3 स्क्वायर, u1 वाज 0, पहले केस में फाइनल वेलोसिटी 3 था और पहले बॉल को हमने रिलीज किया था, u इक्वल टू 0 था, तो v2 तो फाइंड करना है और 4 स्क्वायर था, तो फिर वही आएगा, दिस इज द सेम थिंग, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, सही है, नो इश्यूज। Acceleration of a particle is increasing linearly with time s, तो acceleration a is bt, ऐसा बोला है, the particle starts from origin with initial velocity of v0, okay, the distance traveled by the particle in time t will be, acceleration is dv by dt, that is bt, तो dv is equal to bt dt, तो integrating on both sides
will give me expression of velocity. तो bt dt का integration. तो velocity on the left hand side b constant. कहाँ से कहाँ तक, that is important. हम देखेंगे बाद में इसको. तो b equal to bt square by 2, क्योंकि b dt का इंटीग्रेशन आता है t square by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास ये इंटीग्रल इनडेफिनाइट है, लिमिट्स नहीं है इसके ऊपर. तो टू फाइंड आउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यू से एट t इक्वल टू 0 b इक्वल टू v0, क्योंकि बोल के रखा है, वो बोला है कि इनिशियली v0 था, क्वेश्चन में बोला है, राइट. तो v0 इक्वल टू b इंटू 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस c, मतलब c इक्वल टू v0. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, v0 आ गई. तो सब्स्टिट्यूट करो वापस से. therefore v is equal to bt square by 2 plus v0. आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, बट वेलोसिटी v is dx by dt, bt square by 2 plus v0. अब आप इसको बोलोगे dx equal to v0 dt plus bt square by 2 dt. फिर वापस आप इंटीग्रेट करोगे, you have to integrate. Yes, you have to integrate, and then this is x. v नॉट तो कांस्टेंट था, क्योंकि इनिशियल स्पीड कांस्टेंट थी, उन्होंने बताया है. v नॉट t प्लस b बाई 2 कांस्टेंट, t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3 मतलब नीचे 6 आ जाएगा यहाँ पे, bt क्यूब बाई 6 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6, another constant of integration 0. ठीक है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, put 1 put 0 put anything. तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ पे क्या किया हमने, a इक्वल टू bt, a इक्वल लिखा dv बाई dt, dv ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मैथमेटिक्स. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्यों, दो वेरिएबल है b और t, दोनों को अलग अलग कर सकते हो. यस, dv को एक साइड रखो, dt को दूसरी साइड लेके जाओ, इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि लिमिट्स नहीं थे हमारे पास, तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा. फिर टाइम t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू v0, क्योंकि उन्होंने बोला है पार्टिकल का जो स्पीड है इनिशियल वो v0 है. तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मिल गया v0. ओके, फिर आपने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको v का इक्वेशन मिल गया, बट v इज dx by dt. ओके, देन dt को वापस से सेपरेट करो, put it on the right hand side and then integrate again, so you get your answer. तो ऐसा इसको सॉल्व करना है. The water drop falls at regular intervals from a tap 5 meters above ground. Tap. Water is falling from this tap, which is at a height of 5 meters from the ground. ये distance है 5 meter. 5 meter. Okay. Then the third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. जब यहाँ से तीसरा drop, when third drop was leaving, the first drop reached the ground. Okay, how far above the ground a second drop? तो ये second drop उस instant पे ground से कितना ऊपर होगा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स. पहला ड्रॉप निकला और पहले और दूसरे ड्रॉप के बीच में जितना टाइम होगा उतना ही दूसरे और तीसरे में होगा, उतना ही तीसरे और चौथे में होगा, उतना ही चौथे और पांचवें में होगा. राइट. तो फॉर फर्स्ट ड्रॉप अगर मैं s इक्वल टू ut
प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिखता हूं। S इज 5 मीटर क्योंकि पहला ड्रॉप ग्राउंड तक पहुंच गया। दिस इज 5 मीटर। ड्रॉप टैप से निकलने से पहले U was 0। नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। A की जगह पे G, G की जगह पे 10। ओके राइट। तो ये आपको मिल गया 10 इक्वल टू 10t स्क्वायर, मतलब t इक्वल टू 1। मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकेंड। तीसरा ड्रॉप कब निकल रहा है? जब पहला ग्राउंड पे पहुंच रहा है। मतलब इन दोनों में टाइम इंटरवल 0.5 और 0.5 सेकेंड होगा। करेक्ट? क्लियर? अगर मैं ये डिस्टेंस y1 फाइंड कर पाया तो मुझे ये डिस्टेंस अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 माइनस y1 है। मैं ऊपर का ही क्यों फाइंड कर रहा हूं? क्योंकि इनिशियल u पता है ना। सेकेंड ड्रॉप के लिए मुझे सेकेंड ड्रॉप हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, 10th हो, 1000 हो, सबके लिए u तो 0 ही है। तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे y1 इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो दिस इज 0 प्लस g की वैल्यू 10/2 टाइम कितना? 0.5, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ड्रॉप में 0.5 का डिफरेंस है। तो 0.5 का स्क्वायर इज 25 × 10⁻²। 25 × 5 इज 125 × 10⁻², 1.25 मीटर। तो आपको y1 मिल गया। तो y1 मिल गया तो आपको 5 माइनस y1, मतलब इसको y2 ही बोल देता हूं मैं। दिस इज y2 डिस्टेंस, दैट इज 5 माइनस y1। तो दैट इज 5 माइनस y1। 5 में से 1.25 गया तो 3.75 बचेगा, 3.75 आएगा ये। 5 माइनस 1.25, दिस इज 3.75 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। राइट? तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ये ओरल है, क्या ही करना है। अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, बट ठीक है अभी कर लेते हैं। अ कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। एक्सीलरेशन इज अल्फा फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। For some time, after which it deaccelerates at constant rate beta and comes to rest. Total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be. वैसे ऐसे क्वेश्चंस को I do not suggest to solve। सिर्फ इतना समझ लो, कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेशन अल्फा है, फिर डीएक्सेलरेशन बीटा है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम इज अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। नॉर्मली मैं ऐसा सीधा बोलता हूँ कि रिमेंबर दिस एंड दैट्स इट। राइट? ओके, वन मोर थिंग, अल्फा एंड बीटा बोथ आर एक्सेलरेशंस, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर मीटर बाय सेकेंड रेज़ टू 4 इनटू टाइम, मतलब सेकेंड अपॉन वापस से मीटर स्क्वायर बाय, क्यों? क्योंकि अल्फा एक्सेलरेशन, बीटा एक्सेलरेशन। करेक्ट? राइट? कैंसल कैंसल। वेलोसिटी सेकेंड में आता है क्या? नहीं आता है। मतलब ए और बी ये तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट? ये नहीं हो सकता। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? This wait. Acceleration plus acceleration is acceleration. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये, और नीचे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर, एक और एक गया। तो सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर आके, हाँ, तो तीन ऑप्शन तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और तो फिर बचा क्या? This is method 2. Method 1
फॉर्मूला याद रखो। मेथड 2 डायमेंशनली सिर्फ ऑप्शन डी ही करेक्ट है। मेथड नंबर 3 दैट इज वेयर यू हैव टू डिराइव। मैंने डिराइव करना इज नॉट अ बिग डील हियर। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, एक्सेलरेशन कितना था पहले पार्ट में अल्फा, ओके, डी एक्सेलरेशन बीटा है एनीवेज। तो आप क्या कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके v इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। मान लेते हैं कि ये जो टाइम है t1 था, क्योंकि t1 टोटल टाइम t है, तो t1 पार्ट के लिए एक्सेलरेशन हुआ और t2 के लिए डी एक्सेलरेशन हुआ। तो यहां से तो आपको डेफिनेटली t1 मिल जाएगा v बाय, राइट। ये केस 1, मैं केस 1 लिख देता हूं, u1 v1 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अभी अल्फा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। गाड़ी चला रहे थे 0 से एक्सेट करते 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 सम वैल्यू का एक्सेशन पे आया, फिर डी एक्सेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट केस। That is where you have to understand this. So u2 will be equal to v1, that will be equal to v. a2 is beta, beta negative, because d acceleration. Time is t2 in this case, and v2 is 0, क्योंकि आके तो रुकेगा ना, गाड़ी को ब्रेक मारते तो जाके रुकता ही है वो। तो v2 इक्वल टू u2 प्लस a2 t2, 0 b माइनस बीटा t2, तो t2 इज इक्वल टू v बाय बीटा। आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या करोगे इसके आगे, टोटल टाइम कितना हो गया पहले वो देखो, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, तो t इज इक्वल टू t1, व्हाट इज t1, v बाय अल्फा and v by beta. So t, this is v 1 by alpha plus 1 by beta, right? So t equal to v beta plus alpha upon alpha into beta. So v is equal to alpha beta t upon alpha plus beta. Option number D. गाड़ी चला रहे थे हम, गाड़ी स्टार्ट किए, स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक्सीलरेट करते गए विद अल्फा। हमारा डेस्टिनेशन दिख गया तो इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई की। जब ब्रेक अप्लाई की तो हमारा वो मैक्सिमम स्पीड था, मतलब पहले केस का फाइनल स्पीड और सेकेंड केस का इनिशियल स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड था। फिर ब्रेक अप्लाई करोगे, डी एक्सेलरेशन होगा बीटा, एंड देन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो वही तो है, what else, this is the same thing, correct, clear। तो ये ऐसे डिराइव होता है, which I will advise do not do it, just remember the formula। The velocity of train increases uniformly, मतलब rate of change of velocity is same, मतलब acceleration is constant from 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। तो बेसिकली u दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, v दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 4 आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या करना, क्या काइनेमेटिक्स इक्वेशन में आपको s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, उसमें भी आप क्या करोगे, ut प्लस हाफ a इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटू टी स्क्वायर, ये और ये गया। s इक्वल टू u, कितना है u है 20 और टाइम है 4 आवर, और डिस्टेंस भी किलोमीटर में चाहिए तो हम लोग कन्वर्ट नहीं करने वाले। हाफ 60 माइनस 20 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 80 प्लस this is 40 by 2 into 4, this is basically 80 plus 80, 160 किलोमीटर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए,
This is how you are supposed to solve this particular question. The displacement time graph of a moving particle is shown below. Instantaneous velocity of particle is negative at point. Mathematics, where slope is negative. Well, जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है उनके लिए no issues. This is time, this is displacement. In any case, अगर ऐसा लाइन है तो स्लोप इज पॉजिटिव, अगर ऐसा लाइन है स्लोप इज नेगेटिव, अगर ऐसा लाइन है स्लोप इज 0, अगर ऐसा लाइन है इंफिनिटी. स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis is 0, slope of line parallel to y axis is infinity. Correct. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको मिलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको मिलता है वेलोसिटी. करेक्ट. तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, मतलब टेंजेंट, स्लोप इज व्हाट, टेंजेंट. मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ अगर, तो पॉजिटिव स्लोप. यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो 0, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो नेगेटिव. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एट e. Right? Okay. Which of the following curve does not represent 1D motion? Which does not represent 1D motion? Which you have to think before saying. You see, B नहीं करता, क्यों? क्योंकि सर्कल है इसलिए नहीं. एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी के दो वैल्यूज. It does not represent any motion in fact. क्योंकि वेलोसिटी अगर मैं सपोज एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये टाइम का इंस्टेंट है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू ये भी है और ये भी है. ऐसा होता नहीं है. You cannot have a motion where, कभी सोचा है आप गाड़ी चला रहे हो, सेम टाइम पे आपका वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कभी ऐसा सोचा है क्या? अभी इस टाइम पे मेरी गाड़ी का वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आ रहा है और 80 किलोमीटर पर आ रहा है सेम टाइम, राइट? मान लेते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब 100 है, फिर क्या चेंज होगा? डायरेक्शन. कभी ऐसा होता है क्या एक ही टाइम पे ईस्ट में जा रहे हो, उसी टाइम पे वेस्ट में जा रहे हो? नहीं. So this type of graph does not represent any motion. This is hypothetical case. Next question. A car moves a distance of 200 meters. It covers first half of distance at a speed of 40 kilometers per hour. Second half at a speed of v. Average speed is 48. अभी मुझे बताओ, अभी बताया था मैंने, एवरेज स्पीड जब पहला हाफ v1 दूसरा हाफ v2, तो क्या था? 2v1 v2 अपॉन प्लस v2. v एवरेज कितना दिया है? 48. v1 कितना दिया है? 40. v2 करना है फाइंड v2. तो ये आपका आ जाएगा इन शॉर्ट 48 इक्वल टू, अरे 8 का फैक्टर ही है ना, तो ठीक है. 8 6 जा 8 5 जा 1 जा एंड 3 जा, राइट? तो ये आ जाएगा 3 into 40 plus v2 इक्वल टू 5v2. 120 plus 3v2 equal to 5v2. 2v2 equal to 120, v2 equal to 60. ऑप्शन नंबर बी. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, राइट? I will take one last question and 25th will be assignment. एक क्वेश्चन तो असाइनमेंट देना चाहिए. What is the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th seconds? Ratio of distance Sn क्या था? Sn u plus a by 2. ये a है, 9 नहीं है, a by 2 2n minus 1. मैं मान लूंगा कि u 0 है, तो S4 upon S5 will be
ऑफ कोर्स फ्रीली फॉलिंग मतलब ए कांस्टेंट तो दोनों केस में ए कांस्टेंट रेशो लोगे तो वो कैंसल आउट होगा, तो 2 into 4 minus 1 upon 2 into 5 minus 1 ऐसा आएगा वो, राइट। तो ये ऊपर 7 नीचे 9, 7 by 9, ऑप्शन नंबर बी। That's it for today. एक क्वेश्चन असाइनमेंट